Very good morning, students. How are you all? I hope you all are studying seriously now. During our last class, we completed the topic center-state relations. I hope you understood what does it mean, how the center-state relations changed over the years. Actually, it depended on the relation between the various political parties that formed the government. So with center-state relation, we completed the topic that we were discussing for the last few days. How is federalism practiced in India? Once again, going back to the meaning of federalism. What is the meaning of federalism? Relation between center and state. Division of power between center and state. The central government and the state government. ये हमने डिस्कस किया क्या होता है फेडरलिज्म. Then we discussed what made India a federal country and then how federalism is practiced in India. While we were discussing these topics, हमने एक बात नोट करी थी कि most of the countries in the world which are democratic, they have these two tiers of government. ज़्यादातर countries में ये two tiers हैं, central government and state governments. और इनका division भी हमने पढ़ लिया. But if we talk about our country, India, which is a very vast country with so many diversities, so many variations. हम अगर इंडिया की बात करें तो कितनी डाइवर्स है हमारी कंट्री, फिज़िकली भी, लिंग्वली भी, लैंग्वेज बेस पर, कल्चरली भी इतनी डाइवर्स है. और हमारे स्टेट्स कितने बड़े बड़े स्टेट्स हैं हमारे यहाँ पर. अगर हम पॉपुलेशन के टर्म्स में देखें, किसी भी एरिया की पॉपुलेशन वाइज अगर हम देखें तो हमारा स्टेट उत्तर प्रदेश दैट इज़ बिगर देन रशिया. ऑफ कोर्स लैंड वाइज, टेरिटरी वाइज, एरिया वाइज रशिया इज़ द बिगेस्ट कंट्री, लेकिन उत्तर प्रदेश की पॉपुलेशन इज़ मोर देन रशिया. महाराष्ट्र जो हमारा स्टेट है, इट हैज़ as much population as Germany. अब उत्तर प्रदेश and Maharashtra, they are states of India and Russia and Germany are countries. तो सोचो हमारे कितने states, राजस्थान the biggest state of India, हमारे कितने states ऐसे हैं जो countries से भी बड़े हैं या countries के भी बराबर हैं. So now the problem arose that of course we have adopted federation, principle of federation भी हमने adopt किए, that we divided power between central government and state government. But the thing is हमारे तो states ही countries से बड़े बड़े हैं. तो जब उन countries में भी एक government नहीं होकर levels of government है, बेल्जियम तो कितना छोटा country है, हरियाणा जितना, इट इज़ ऑल्सो डिवाइडेड इनटू स्टेट्स. तो हमारे ये बड़े स्टेट्स तो कंट्रीज से भी बड़े बड़े हैं. तो इट बिकेम वेरी डिफ़िकल्ट टू रूल दीज स्टेट्स. और सिर्फ बड़े ही नहीं हैं, ये डाइवर्स भी हैं, फिज़िकली बहुत डाइवर्स हैं. कहीं प्लेन्स हैं, कहीं माउंटेन्स हैं, कहीं फॉरेस्ट है, प्लेटो रीजन है. आपने 9th में पूरा इंडिया का जोग्राफिकल फीचर्स पढ़े हैं. हमारे स्टेट्स तो इतने डाइवर्स भी हैं. So it became very difficult to rule these states by one government. एक state government के लिए इन states को rule करना बहुत difficult हो रहा था. So there was a need for power sharing within these states. क्योंकि states इतने बड़े हैं, state government इनको properly administer नहीं कर पा रही थी. So there was a need was felt कि इन स्टेट्स को अगर प्रॉपरली एडमिनिस्टर करना है तो क्या. सो दैट्स वाई वी अडॉप्टेड
the third tier of government which we call as the local government. क्या कहलाती है बच्चों ये थर्ड टियर ऑफ गवर्नमेंट? लोकल गवर्नमेंट. क्योंकि ये स्टेट्स बहुत बड़े हैं फिजिकली भी, पॉपुलेशन वाइज भी, so it was difficult for the government to rule. That is why a third tier of government was adopted, which is popularly known as the local government. So now, when power is taken away from central and state governments and given to local government, what is it known as? It is known as decentralization. तो ये जो लोकल गवर्नमेंट हमने बनाई, ये फेडरलिज्म नहीं कहलाएगा. फेडरलिज्म तो क्या था बच्चों? डिवीजन ऑफ पावर बिटवीन सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट. But when we took certain powers from state government and central government and gave those powers to this local government, इसको हमने क्या नाम दिया? Decentralization. So how are you going to define decentralization? When power is taken away from central and state governments and given to local government, it is called as डिसेंट्रलाइजेशन. तो ये स्टेप कहलाया डिसेंट्रलाइजेशन. अब ये डिसेंट्रलाइजेशन करने के पीछे व्हाट वाज द बेसिक आइडिया? द बेसिक आइडिया बिहाइंड डिसेंट्रलाइजेशन इज दैट देयर आर अ लार्ज नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स एंड इश्यूज which are best settled at the local level. Okay, I'll give you an example. हमारी बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स हैं. आप सब कॉलोनीज़ में रहते हैं, घरों में रहते हैं, जिन सोसाइटीज़ में रहते हैं, देर आर सो मैनी डिफरेंट लोकल प्रॉब्लम, है ना. हमारे घर के सामने सफाई नहीं हो रही है, ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है. हाँ, सफाई नहीं होती है कॉलोनीज़ में. सो ये प्रॉब्लम लेकर हम किसके पास जाएंगे? आर वी गोइंग टू गो नियर द स्टेट गवर्नमेंट? क्या आप चीफ मिनिस्टर को ये कहोगे कि भाई हमारी कॉलोनी में सफाई नहीं हो रही है, हमारे नलों में पानी नहीं आ रहा है, या जो भी है. हाँ, देयर आर सो मैनी स्ट्रे डॉग्स एंड स्ट्रे एनिमल्स इन आवर लेन्स. ये कुछ हमारी लोकल प्रॉब्लम्स है ना. तो लोकल प्रॉब्लम्स लोकल लेवल पर ही सेटल हो जाए. दिस वॉज वन बेसिक आइडिया बिहाइंड डिसेंट्रलाइजेशन. क्योंकि बहुत सारी ऐसी लोकल प्रॉब्लम होती हैं जो हम स्टेट गवर्नमेंट से डिस्कस नहीं कर सकते. लोकल प्रॉब्लम लोकल लेवल पर सेटल हो जाए, इसलिए ये थर्ड टियर ऑफ गवर्नमेंट बनाया गया. फिर क्या होता है? जो लोकल पीपल होते हैं, दे अंडरस्टैंड इन अ बेटर वे व्हाट आर द लोकल प्रॉब्लम्स एंड हाउ कैन दीज प्रॉब्लम्स बी सॉल्व्ड. जो लोग उन प्रॉब्लम्स को डेली फेस करते हैं, वो ही उनके बेटर सॉल्यूशंस दे सकते हैं. ये एक वजह थी क्यों डिसेंट्रलाइजेशन किया गया, है ना. और जो लोकल लेवल पर काम हो जाए सारा. दैट वाज द बेसिक आइडिया बिहाइंड डिसेंट्रलाइजेशन. और फिर डायरेक्टली लोग पार्टिसिपेट कर पाते हैं. आपकी कॉलोनी में अगर कोई भी इशू है, कोई प्रॉब्लम है, जैसे मैंने बोला देयर इज़ नो क्लेanलीनेस, सैनिटेशन प्रॉब्लम है, या कोई भी इशू हो रहा है, तो whom do you contact? आप सीधा किससे कांटेक्ट करोगे? द वार्ड मेंबर ऑफ योर कॉलोनी, है, जिसे हम पार्षद कहते हैं, पॉपुलरली नोन एज, व्हाट आर दे नोन एज? वार्ड मेंबर्स. आप उनसे जाकर कहोगे हमारी लेन में सफाई नहीं हो रही है, सफाई करवाओ. इट इज़ हिज रिस्पॉन्सिबिलिटी. सो दिस इज़ इट चिल्ड्रन, दैट लोकल प्रॉब्लम्स कैन बेस्ट बी सेटल्ड एट लोकल लेवल. इसलिए ये थर्ड टियर ऑफ गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस किया गया. और एक और कारण है, आफ्टर ऑल डेमोक्रेसी इज रूल ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल एंड बाय द पीपल. लोकल लेवल से ही लीडर्स को ट्रेनिंग मिलती है. जनरली आपने देखा होगा जो लोकल लीडर्स होते हैं, दे ओनली डेवलप, दे ओनली राइज एंड बिकम the state leaders and then at national level leaders. तो एक तरह से ये ट्रेनिंग ग्राउंड आप मान सकते हो
नेशनल लीडर्स कोई डायरेक्टली नेशनल लीडर नहीं बन जाता, सबसे पहले कहाँ काम करना शुरू करता है वो? लोकल लेवल पर. देन ही बिकम्स पॉपुलर, देन ही बिकम्स स्टेट लेवल लीडर एंड देन ही बिकम्स नेशनल लेवल लीडर. तो एक तरह से ये लोकल गवर्नमेंट हमारे लीडर्स के लिए ट्रेनिंग ग्राउंड भी है, एंड विच मेक्स डेमोक्रेसी better and strong. And but see, when India became independent, there was no third tier of government. हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने सिर्फ क्या किया था? इंडिया को डिवाइड किया था स्टेट्स में. सो बेसिकली जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना उसमें सिर्फ 2 लेवल ऑफ गवर्नमेंट थी, नेशनल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट. ये जो लोकल लेवल ऑफ गवर्नमेंट हम यहाँ डिस्कस कर रहे हैं, इट वॉज इंट्रोड्यूस्ड मच लेटर, बहुत बाद में जाकर ये इंट्रोड्यूस किया गया है ना. और फिर इंट्रोडक्शन के बाद भी बहुत कोशिश की गई इस लोकल गवर्नमेंट को विलेज लेवल तक लेकर जाने की. अब ये जो लोकल गवर्नमेंट है, हम इसी चैप्टर में आगे पूरा स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, व्हाट इज़ दिस लोकल गवर्नमेंट. तो इसमें कोशिश की गई कि ज़्यादा से ज़्यादा पास दिए जाएं टू दीज लोकल गवर्नमेंट, यू नो, विलेज लेवल तक. ग्राम पंचायत जो होती है, जो जनरली विलेज में है ना, कौन कौन से इंस्टीट्यूशंस हैं जिन्हें हम लोकल गवर्नमेंट कह सकते हैं. तो विलेज की जो ग्राम पंचायत है, वहाँ से लेकर और हमारे सिटी में जिसे हम नगर परिषद कहते हैं या नगर निगम, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन कहते हैं, ये सारे इंस्टीट्यूशंस किस में आते हैं बच्चों? लोकल गवर्नमेंट में आते हैं ना. पंचायत्स इन विलेजेस एंड म्यूनिसिपैलिटीज़ इन अर्बन एरियाज. तो व्हेन दिस कॉन्सेप्ट वाज अडॉप्टेड, जब इंडिया में डिसेंट्रलाइजेशन हुआ, तो ऑल ओवर द कंट्री द स्टेट्स वर डिवाइडेड. अर्बन एरियाज़ में म्यूनिसिपैलिटीज़ फॉर्म की गई और रूरल एरियाज़ में पंचायत्स बनाई गई, ग्राम पंचायत्स बनाई गई. लेकिन कमी क्या रह गई? देखो, पंचायत तो बन गई, पंच व इलेक्टेड, सरपंच व इलेक्टेड, म्यूनिसिपैलिटीज़ बन गई, मेंबर्स व इलेक्टेड, वार्ड मेंबर्स व इलेक्टेड, बट दे वर अंडर द डायरेक्ट कंट्रोल ऑफ स्टेट गवर्नमेंट. स्टेट गवर्नमेंट्स ने म्यूनिसिपैलिटीज़ तो बना दी, स्टेट गवर्नमेंट ने ग्राम पंचायत तो बना दी, इंस्टीट्यूशंस तो बन गए, लेकिन कमी क्या रह गई? व्हाट वाज द ओनली लिमिटेशन एट दैट टाइम? दैट नॉट मच पावर्स वर गिवन टू दीज इंस्टीट्यूशंस. ये सिर्फ नाम के इंस्टीट्यूशंस थे कि है नगर परिषद है. अब नगर परिषद बन तो गई, लेकिन नगर परिषद के पास ज़्यादा पावर्स हैं ही नहीं कोई काम करवाने के लिए. अगर लोकल पीपल कुछ डिमांड भी करते थे इन इंस्टीट्यूशन से, तो दे हैव टू लुक अप टू द स्टेट गवर्नमेंट. रेवेन्यू, टैक्सेस, मनी के लिए स्टेट गवर्नमेंट पर डिपेंडेंट है. हर डिसीजन पहले कहाँ से पास करवाना पड़ रहा है? स्टेट गवर्नमेंट से पास करवाना पड़ रहा है. तो लोकल गवर्नमेंट्स, ये क्या है? लोकल गवर्नमेंट्स did not have any powers or resources of their own. This was the limitation at that time. और इसकी वजह से क्या हो रहा था? Not much development took place, and of course this was not decentralization in actual terms. क्योंकि हमने decentralization की definition क्या पढ़ी है? Powers taken from central and state government and given to local government. So local governments were formed, but not much powers were given to these local governments. तो देखा जाए तो practical terms में effectively they were not much powerful. For everything they have to depend on the state government. Then a major step was taken towards decentralization in the year 1992. कौन से ईयर में एक बहुत बड़ा चेंज आया बच्चों? इन द ईयर 1992. In 1992, the central government amended the constitution to make this third tier of democracy more powerful and effective. 92 में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ चेंजेस किए गए.
और उसके बाद ये जो नेक्स्ट हम कुछ पॉइंट्स पढ़ेंगे दैट यू हैव टू लर्न नाइसली. These were the various changes which were made by the central government by amending the constitution. और 92 के बाद local governments were made more powerful. So now what were these changes which happened in the year 1992 and made the local government more powerful and more resourceful? The first change was that now it is constitutionally mandatory, compulsory, to hold regular elections to local government bodies. आप सब जानते हो इंडिया में कितने साल में इलेक्शंस होते हैं? आफ्टर एवरी 5 years. Of course we know सेंट्रल गवर्नमेंट के इलेक्शंस होते हैं आफ्टर एवरी 5 years. देन स्टेट गवर्नमेंट के इलेक्शंस होते हैं 5 years के बाद. ऐसे ही सिस्टम बनाया गया था दैट लोकल गवर्नमेंट के इलेक्शंस भी ऑफ कोर्स कितने टाइम बाद होंगे? आफ्टर एवरी 5 years. बट बिफोर 1992 व्हाट हैपेंड? एक बार इलेक्शंस हुए, उसके बाद इलेक्शंस ही नहीं हुए. 5 years, 6 years, 7, 8, 10 years, 12 years. The same government was going on. And it's written in our constitution कि जिस दिन से गवर्नमेंट इलेक्ट होती है, 9th में पढ़ा होगा बच्चों, द डे अ गवर्नमेंट इज इलेक्टेड फ्रॉम दैट डे टू द नेक्स्ट 5 years, वो गवर्नमेंट लीगल रहती है, उसके पास काम करने का अधिकार रहता है. बिफोर द कंप्लीशन ऑफ टर्म ऑफ 5 years दोबारा इलेक्शन कराने ज़रूरी होते हैं, क्योंकि अगर उस गवर्नमेंट का टर्म ख़त्म हो गया तो फिर हु इज़ गोइंग टू कैरी आउट द वर्क ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन. लेकिन यहाँ क्या हो रहा है? एक बार लोकल गवर्नमेंट्स फॉर्म हो गई, देन नो इलेक्शंस आर टेकिंग प्लेस. 5 साल बाद उस गवर्नमेंट का टर्म ख़त्म हो गया. सो एक तरह से लोकल गवर्नमेंट सिर्फ नाम की गवर्नमेंट्स बनकर रह गई, क्योंकि रेगुलर इलेक्शंस नहीं हो रहे थे. So now after 1992, the first thing that was made compulsory to hold regular election to these local government bodies after every 5 years. Then second change was that seats are reserved in the elected bodies and the executive heads of these institutions for scheduled caste, scheduled tribes and other backward classes. रिजर्वेशन सिस्टम आपने इलेक्शंस में पढ़ा था लास्ट ईयर कि लोकसभा और विधानसभा में रिजर्व्ड सीट्स हैं, रिजर्व्ड कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं फॉर शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स. सेम सिस्टम वाज कैरिड आउट इन द लोकल गवर्नमेंट बॉडीज ऑल्सो. जिन एरियाज़ में इन कम्युनिटीज़ की पॉपुलेशन ज़्यादा है, उन एरियाज़ को रिजर्व रखा गया फॉर द शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब्स एंड other backward classes. And when we talk about the word executive heads means the chairman, है ना, नगर परिषद के जो चेयरमैन होते हैं या नगर पालिका के जो चेयरमैन, हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन, वो सीट्स भी कुछ रिजर्व रखी गई फॉर शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब एंड अदर बैकवर्ड क्लासेस. Then the third step that was taken was at least 1/3 of all positions are reserved for women. 1/3, 33% reservation was made for women in these local government bodies. 33% सीट्स पर women का elect होना ज़रूरी है. Next change was very important change. An independent institution called the State Election Commission has been created in each state to conduct panchayat and municipal elections. We already have one election commission for the whole country. उस election commission की powers and functions पढ़ चुके हैं हम. क्या है? To carry out, to conduct elections all over the country. अब वो जो हमारा national level का election commission है, it already has the responsibility to conduct Lok Sabha elections, general elections and Vidhan Sabha elections in all the states. Already उनके पास बहुत सारा काम है, तो ये local elections की responsibility तो नहीं दी जा सकती, because all the states
डिफरेंट टाइम पर लोकल गवर्नमेंट इलेक्शंस होते हैं. सो इन एवरी स्टेट इट वॉज डिसाइडेड दैट इन एवरी स्टेट एक नया इंस्टीट्यूशन क्रिएट किया जाएगा, दैट इज द स्टेट इलेक्शन कमीशन. नाउ इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी of this state election commission to conduct the elections for the local government bodies. तो हर स्टेट में एक स्टेट इलेक्शन कमीशन बनाया गया जो इन लोकल गवर्नमेंट बॉडीज़ के इलेक्शंस करवाते हैं आफ्टर एवरी 5 years. Next step was the state governments are required to share some powers and revenues with local government bodies. Then it was asked to all the state governments. अभी तक स्टेट गवर्नमेंट्स ने कोई ज़्यादा पावर्स या रेवेन्यू मीन्स मनी, टैक्सेस कलेक्ट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी लोकल बॉडीज़ को नहीं दी थी. तो हर काम के लिए लोकल गवर्नमेंट बॉडीज़ किस पर डिपेंड रहती थी? स्टेट गवर्नमेंट पर. तो आफ्टर दिस अमेंडमेंट ऑफ 1992 इट वॉज आस्क्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट टू द स्टेट गवर्नमेंट्स that they have to give compulsorily certain powers and certain revenue to the local government body. local government body को कुछ powers भी देने पड़ेंगे और टैक्स कलेक्ट करने के कुछ अथॉरिटी लोकल गवर्नमेंट बॉडी को देनी पड़ेगी ताकि उनके पास भी मनी कलेक्शन हो सके टू कैरी आउट वेरियस फंक्शंस. लेकिन यहाँ पर ये स्टेट गवर्नमेंट की विश पर छोड़ दिया गया कि वो कितने पावर्स अपनी लोकल गवर्नमेंट्स को देंगे. इसके बारे में कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ नहीं लिखा हुआ है कि कितने पावर्स देने हैं. इट डिपेंड्स ऑन द विश ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट कि वो अपनी लोकल गवर्नमेंट बॉडीज़ को कितने पावर्स देते हैं, कौन से टैक्स कलेक्ट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी देते हैं. दिस वेरीज फ्रॉम स्टेट टू स्टेट. एंड इफ़ वी टॉक अबाउट राजस्थान, अ लॉट ऑफ पावर्स एंड रेवेन्यू are being given to local government bodies. है ना, बहुत सारे हमारी स्टेट गवर्नमेंट ने बहुत सारे पार्ट्स लोकल गवर्नमेंट को दे रखे हैं विच मेक दीज लोकल गवर्नमेंट बॉडीज़ मोर स्ट्रॉन्ग. तो बच्चों ये कुछ चेंजेस थे विच वर कैरिड आउट इन द ईयर 1992 टू मेक द लोकल गवर्नमेंट बॉडीज़ मोर स्ट्रॉन्ग. आज हमने क्या पढ़ा बच्चों? सबसे पहले नीड ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन. वाई डिड वी हैव टू हैव दिस थर्ड टियर ऑफ गवर्नमेंट? बिकॉज सो मैनी स्टेट्स आर बिगर देन मैनी कंट्रीज विथ लार्ज पॉपुलेशन, सो इट बिकेम वेरी डिफिकल्ट फॉर द गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट्स टू रूल. देन व्हाट इज़ डिसेंट्रलाइजेशन? हमने उसकी डेफिनेशन पढ़ी. क्यों डिसेंट्रलाइजेशन किया गया? Because local problems can best be settled at local level. Local people better understand what are the local problems and they have better solutions for it. And then what changes occurred in the year 1992 to make these local government bodies more powerful. ये 5 points हैं जो आपको बहुत अच्छे से याद करने हैं. I hope you understood the lesson for today. कल हम समझेंगे ये गवर्नमेंट हैं कौन कौन सी. अर्बन एरिया की गवर्नमेंट अलग है और रूरल एरिया की गवर्नमेंट अलग है, कैसे काम करते हैं और इनके पावर्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या क्या हैं. तो आज के लिए इतना ही हम लेसन करेंगे. Go through the lesson properly and try to learn whatever I told you in today's lesson. So it's goodbye from now and keep learning.